Hello बच्चों, welcome to grade 8 sessions of subject geography and we are discussing chapter number 2 that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This is your 8th session, right? तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject geography का chapter number 2 discuss कर रहे हैं which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ये आपका 8th session है. So let's start. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किया. दैट वाटर इज इन कांस्टेंट मोशन, इट इज साइक्लिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल. दिस फेनोमेना वेयर देयर इज जहाँ पे इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है. सो थ्रू दीज प्रोसेसेस कि सबसे पहले वाटर इवापोरेट होता है, इट राइजेस इन द एयर, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड देन प्रेसिपिटेशन दैट इज फॉलिंग ऑफ वाटर और कमिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट. तो ये वाटर साइकिल का फेनोमेना है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूजेस ऑफ वाटर. वी सॉ दैट वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट, दैट फॉर द डोमेस्टिक यूज या फिर कमर्शियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज. ये बहुत सारे यूजेस होते हैं वाटर के, राइट. हम लोगों ने उनको डिटेल में डिस्कस किया था. Then we talked about the problems of water availability, जिसमें हम लोगों ने देखा कि due to the rising demand of people or the rising population or the urbanization or rising demand for the food, water availability की बहुत ज़्यादा problem है. It has led to the shortage of water. तो इसके लिए हमने देखा also water pollution के बारे में पढ़ा कि how the water is contaminated through our own activities, through the contamination, through the waste that we are throwing in without any treatment, without any prior treatment directly into the water bodies that of the oceans or the rivers, lakes. तो इस तरीके से water pollution हो रहा है, contamination of water bodies, right? Then we talked about the water pollution here. Then we talked about the water conservation, जिसमें हमने देखा that through different processes we can conserve our water, and we talked about afforestation, rainwater harvesting, the forest cover and the vegetation that plays an important role. Apart from that, we talked about the sprinklers that are used in farms or the different parks or different areas. You can see that sprinklers are used, right? उसके अलावा trickle irrigation system that is used in the dry region. तो ये हम लोगों ने वाटर के बारे में कंप्लीट कर लिया था, राइट. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक हियर, right, in the whole course, that is the land, water, soil, natural vegetation and wildlife. तो आज हम लोग इसके बारे में कवर करते हैं. Let us see now. So natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere called biosphere. तो बच्चों ये सारे जो terms हैं, lithosphere, hydrosphere and the atmosphere, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट. और these are collectively known as the biosphere. तो lithosphere that is the land, atmosphere the air and hydrosphere is the water. So we can say that the natural vegetation or wildlife, let it be the aquatic plants and animals or the plants or animals that are on the land surface. So basically these exist in the narrow zone here, in the lithosphere, in the hydrosphere, in the atmosphere, and we collectively call it as the biosphere, right? Now, second term that we should know when we are talking about the natural vegetation and wildlife is the ecosystem. तो बच्चों आप लोगों ने ecosystem के बारे में पढ़ा था. It is basically a process in which organisms they interact with each other and also with the environment. So, in the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life-supporting system is known as ecosystem. तो बच्चों ये लास्ट जब हम लोग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट, और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं एंड देन दे आर इंटरैक्टिंग विद द होल सराउंडिंग और द एनवायरमेंट दैट दे आर लिविंग इन. सो बेसिकली दिस फॉर्म्स द इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग बींग्स दे आर इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट फॉर ऑन ईच अदर, बेसिकली फॉर द सर्वाइवल, फॉर देयर ओन सर्वाइवल. And this supporting system is called the ecosystem, right? Now let us talk about the natural vegetation. तो हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था, जब natural vegetation की बात करें तो आप vegetation से समझ जाते हो कि इसमें plant या फिर forest की बात होगी, right? तो एक बार हम लोग समझते हैं डिटेल में that what is this natural vegetation, what does it comprise of, and let us see more about it.
Okay, so natural vegetation refers to the garment of plants and trees that exist in the area before it is modified by man. Now let us understand it first. तो natural vegetation क्या होता है बच्चों? It is the garment of plant and trees. मतलब जितनी भी different varieties of plants or plant species or the trees that are there on the earth surface, on the lithosphere or in the water bodies, right? तो ये सारे natural vegetation के अंदर आते हैं. Now it is called natural vegetation when before it is modified by man, right? तो जब तक man अपनी एक्टिविटी से इन जितने भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, एज द नेम इम्प्लाइज इटसेल्फ, कि जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के अंदर लाते हैं, राइट? तो इसको मॉडिफिकेशन के थ्रू मैन अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू मॉडिफाई करता है. नाउ लेट अस लुक एट द एक्टिविटीज थ्रू विच मैन ट्राइज टू मॉडिफाई दिस नेचुरल वेजिटेशन. So man uses this natural vegetation for activities such as farming, mining, lumbering and industrial, economic and urban development, right? तो हम लोग जो human beings हैं वो different activities के लिए they use this natural vegetation. We can call it for the farming purposes के लिए agriculture में, then for mining activities, okay, mining के लिए use होता है, then the lumbering, that is the wood are collected, the wood logs are collected, right, for taking it to the lumber industry. Then we can talk about the industrial processes, economic and the urban development for which this natural vegetation is used. Also you can see that we need natural vegetation because it helps us humans and animals. Now let us see how this natural vegetation it helps the human beings and the animals. So people use natural vegetation for food, building materials, etc. तो बच्चों जब भी आप trees या plants देखते हो तो you can think of numerous ways in which we are dependent on this natural vegetation. Also you should try to make a list of those things which you think that we are using the plants and trees for. तो यहाँ पे दो example जैसे आपके लिए हैं for food, for building materials. तो इन सब चीजों के लिए जो हम plants और trees के ऊपर dependent रहते हैं, right? और animals कैसे होते हैं? So animals such as herbivores they use it for food. तो जितने भी herbivores animals हैं definitely वो हमेशा ये plants और trees पे dependent रहेंगे, right? For their food. तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग natural vegetation पे dependent रहते हैं. और बच्चों जब हम लोग natural vegetation की बात कर रहे हैं so obviously जैसे हमने land के बारे में देखा that there are different land forms, different types of land forms. Again then we talked about the soil जिसमें हमने देखा that different types of soil are found in India. या फिर आप वर्ल्ड के लेवल पे भी देख लो तो बहुत सारे सॉइल्स होते हैं. दे आर बेस्ड ऑन द लैंड फॉर्म्स. अगेन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट वाटर बॉडीज देन वी सॉ दैट देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. लाइकवाइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट आर फाउंड, राइट? तो वर्ल्ड लेवल पे देख लो या इंडिया में हम लोग बात करते हैं सो वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. ऑल्सो यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस टाइप्स इन क्लास 7 ऑल्सो, बट लेट अस डिस्कस हियर. The first one here is the tropical evergreen forest. Second one is the tropical deciduous forest. Third one is the thorny bushes. Fourth one is the mountain vegetation. And fifth one is the mangrove forest. तो बच्चों ये basically 5 classification है, 5 classification of the vegetation that is found in our country India. तो ये 5 नाम आप याद रखना. Tropical evergreen, इसमें भी बहुत सारे types होते हैं. Tropical deciduous forest, thorny bushes, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स है, राइट? अब इंडिया के मैप में अगर आप देखो बच्चों तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट रीजन में जिस तरीके का लैंड होता है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, उस हिसाब से वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होता है. अगर हम लोग माउंटेनियस रीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन होगा. अगर हम डेजर्ट रीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, राइट? ऑल्सो सॉइल क्वालिटी इज नॉट दैट गुड. तो इस रीजन में थॉर्नी बुशेस होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाता है, राइट? डेसिडियस फॉरेस्ट जो है बच्चों हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये सबसे ज्यादा आप क्वांटिटी में देख सकते हो. अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा. एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, राइट? तो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है, क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. अगेन द मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज गुड, तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखेंगे. तो इस तरीके से डिफरेंट वेजिटेशन और उनका आप देख सकते हो इंडिया में डिफरेंट जगह पे वो डिफरेंट क्वांटिटीज में दे आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री.
नाउ लेट अस सी द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. तो बच्चों, एज आई सेड कि यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द यूजेस दैट वी यूज that we are dependent on the plants or trees or the forest basically, right? तो अब आप देखो कि आपने अगर लिस्ट बनाया तो आपके कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, राइट? So the first and the most basic thing that we are dependent on plants for is the oxygen. So obviously you know that plants or the trees, they provide us oxygen. Now how do they do that? तो उनका जो प्रोसेस होता है, the process of making food, also वो जब भी वो सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट दे नीड, राइट? तो वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन, राइट? और यही ऑक्सीजन है दैट वी इनहेल. तो दिस इज द लाइफ सेविंग गैस फॉर अस. अब हम लोग डिफरेंट यूजेस देखते हैं जो फॉरेस्ट के हैं, राइट? तो फर्स्ट वन हियर इज द मेडिसिन. सो इट प्रोवाइड्स अस द मेडिसिन. जो भी आप हर्बल प्लांट्स देखते होंगे, आप अपने घर में दादी को भी देखते होंगे कि पुराने टाइम पे वो लोग ये प्लांट्स और ट्रीज, जितने भी हर्बल प्लांट्स होते थे, उनके थ्रू ये मेडिसिन बनते थे, राइट? जो भी एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवा होती है. देन अगेन द शेल्टर. ऑब्वियसली द फॉरेस्ट दे प्रोवाइड अस विद द शेल्टर. फॉडर, दैट इज द फूड. देन द फ्यूल, जितने भी वुड और ये सारी चीजें होती है वो हमारी ट्रीज के थ्रू ही आती है, राइट? स्पोर्ट्स गुड्स, जितने भी आप जो भी स्पोर्ट्स गुड, जैसे आप बैट या फिर हॉकी स्टिक, इन सब चीजों से खेलते हो, तो डू यू इमेजिन कि ये कहाँ से आता है? इफ यू डोंट नाउ, यू शुड थिंक कि जितने भी बैट और जितने भी हॉकी स्टिक या जो भी आप वुड के मटेरियल यूज करते हो, दैट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द ट्रीज, राइट? ऑल्सो द फर्नीचर्स, जो भी टेबल, चेयर्स जो भी आपके घर में प्रेजेंट है, तो जो भी चीजें वुड की बनी है वो डायरेक्टली हमारी ट्रीज से आती है, जो फॉरेस्ट से आती है. देन द हनी, राइट? हनी जो हमारा हनी बी से आता है, राइट? और ये हनी बी आपको प्लांट्स के ऊपर ही मिलेंगे, जो भी ट्रीज हैं उनके ऊपर मिलेंगे. सो देयरफॉर इनडायरेक्टली वी कैन से वी आल्सो गेट हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट. फ्रूट्स, राइट? गम एंड लैक, तो आप जो भी चीजें यू यूज फॉर द पेपर फॉर स्टिकिंग, तो ये जो गम और लैक जो आप यूज करते हो, ये भी हमारा कहाँ से आता है? ये हमारा ट्रीज से आता है, ओके? इट इज ऑल्सो नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. ऑब्वियसली आप ट्रीज पे देखते होंगे बहुत सारे बर्ड्स जो अपने नेस्ट बनाते हैं, या फिर बहुत सारे शेड के नीचे, ट्रीज के शेड के नीचे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर दीज वाइल्ड लाइफ, फॉर द वाइल्ड एनिमल्स और द बर्ड्स. अगेन फॉर टिम्बर एंड देन फॉर रबर. तो यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. सो जैसे हम लोग लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, likewise we are also depending on the forest, and these are some of the uses. I hope आप लोग अगर लिस्ट बनाए हो तो some of these points must be matching with that of yours. तो हम लोग फॉरेस्ट को फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं, माइनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं. तो यू कैन से दैट जैसे हम लोग लैंड और ये सारी चीजें को यूज करके ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, लाइकवाइज फॉरेस्ट भी एक्सप्लॉइट होता है, राइट? तो हम लोग जो अगर फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत वास्ट रीजन जो फॉरेस्ट का है उसको रिमूव करना पड़ता है. So that is called the deforestation. Apart from that, mining activities अगर हो रही है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो बच्चों उसके लिए भी तो फॉरेस्ट को रिमूव करना होगा. तो जितने भी ट्री कवर, जो भी ट्रीज होंगे उनको रिमूव करना होगा. इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इट इज आल्सो लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन. तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो आज की क्लास में वी टॉक्ड अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट? दैट दे एग्जिस्ट इन द नैरो जोन बिटवीन द lithosphere, hydrosphere and atmosphere, which is collectively known as the biosphere. Again, we talked about the ecosystem where the living organisms, they interact with each other and that with the environment. Apart from that, we also talked about what is natural vegetation and how man has modified it for the natural vegetation for its own purposes, right? उसमें हम लोगों ने देखा mining, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक पर्पसेस, राइट? इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने अपने नेचुरल वेजिटेशन को यूज किया है. देन वी टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और बात करेंगे. देन वी विल ट्राई टू कवर द वाइल्ड लाइफ, ओके? और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड दैट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ओके? थैंक यू वेरी मच. Have a nice day.